औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 10th की उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, so far we have been discussing the variety of modes of different species used for production. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use sexual mode of reproduction. How does this process work? Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है इसमें चेंजेस आती हैं. You have learned changes that take place in your body earlier in class 8th also. आपने 8वीं जमात में भी पढ़ा है कि कौन सी चेंजेस हमारी बॉडी में रोनमा होती हैं और हम notice करते हैं. Height has increased continuously from early age till now. We acquire teeth, we even lose the old so-called milk teeth and acquire new ones. All these changes that can be grouped under the general process of growth, in which the body becomes larger, but in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of body changes, proportions change, new features appear, and so do new sensations. Some of these changes are common to both boys and girls. We began to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and genital area between the thighs, which can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arms, as well as on the face. The skin frequently becomes oily and we might begin to develop the pimples. We began to be conscious and aware of both our own bodies and those of the other in new ways. प्यारे बच्चों, हम देखते हैं बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं. आर्मपिट्स में बालों का निकलना, इसी तरह फेस पे हेयर का अपीयर होना, लेग्स पे, आर्म्स पे, इसी तरह जो हमारा स्किन है वो ऑयली बन जाता है और उस पर पिंपल्स होते हैं और हम इस चीज़ के कॉन्शियस बन जाते हैं. दूसरी तरह से देयर आर आल्सो चेंजेस टेक्स प्लेस इन दैट डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड, तो ऐसी भी चेंजेस हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में मुख्तलिफ होती हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन्स टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स at the tips of breasts. Also, girls began to measure at around this time. Boys began to have new thick hair growth on the face and their voices began to crack. Further, the pins occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. All these changes that take place slowly over a period of months and the years, they do not happen all the same time in one person, nor they do happen at an exact age. In some people they happen early and quickly, while in others they can happen slowly. Also, each change does not become a complete quickly either. So for example, thick hair on the face in boys appears as a few scattered hairs first, and only slowly does the growth begins to become uniform. Even so, all these changes show differences between people. Just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or pins. All these changes are aspects of sexual maturation of the body. ये सारी चेंजेस जो हैं ये सेक्सुअल मैचुरेशन की एस्पेक्ट्स हैं. Why does the body show sexual maturation at this? इस एज पे सेक्सुअल मैचुरेशन बॉडी क्यों दिखाती है? We had talked about the need of her specialized cell type multicellular bodies to carry specialized.
हमने पहले पढ़ा है कि जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में हैं, इनमें जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल्स टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन. दो जर्म सेल्स जो होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इनकी स्पेशल फंक्शन है. एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप ए स्पेशल सेल एंड द टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम. प्लांट्स में भी एक स्पेशल सेल है, टिश्यू टाइप है, जो इनको क्रिएट करती है. ह्यूमन बींग्स आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस. और ह्यूमन बींग्स में भी इस मकसद के लिए स्पेशल टिश्यूज डेवलप होते हैं. However, while the body of the individual organism is growing to its adult size, जब किसी individual organism की body adult size में grow हो रही है, the resources of the body are mainly directly at achieving this growth. While that is happening, the maturation of reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. जब जनरल बॉडी ग्रोथ का रेट स्लो डाउन होता है तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मैच्योर बन जाते हैं. एंड दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस की इस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं. सो हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये सारी चेंजेस जिनके मतलब हमने बात की, ये कैसे ताल्लुक़ रखते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से. वी मस्ट रिमेंबर दैट sexual mode of reproduction means the germ cells from two individuals have to join together. Sexual mode of reproduction का माने जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं उनकी जर्म सेल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है. They can happen by external release of germ cells from the bodies of individuals. ये external release of germ cells से भी होता है, happens in the flowering plants, or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion, as happens in many animals. And animals ought to participate in this process of mating. Their state of sexual maturity must be identifiable by the other individuals. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signals that sexual maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cells between the two people needs special organ for the sexual act, such as penis, when it is capable of becoming erect. In mammals such as humans, the baby is carried in the mother's body for a long period and it will be breastfed later. The female reproductive organs and breasts will need to mature to accommodate these possibilities. Let us look the systems involved in the process of sexual reproduction. चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं. सबसे पहला सिस्टम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए आप मेरे बच्चों. दिस इज हियर, these are testes, this is scrotum, this is vasa differentia, this is urethra, this is penis, this is prostate gland, this is bladder and this is seminal vesicle. ये जो ये वाला आप देखते हैं ये निशान, दिस इज सेमिनल वेसिकल, और ये यहाँ पे जो ये थैला जैसे है, दिस इज यूरेटर. तो अब आप देखिए ये सारी चीज़ें आपने देखी. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि फिगर 8.10 में है, कंसिस्ट्स ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन. एक पोर्शन इसमें होता है जो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है और दूसरा पोर्शन होता है जो इन जर्म सेल्स को डिलीवर करता है उस जगह जहाँ से इसकी फर्टिलाइजेशन होती है. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस. सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स होती है या स्पर्म्स, वो कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में. ये जो टेस्टिस हैं यहाँ पे जर्म सेल्स बनते हैं. और उसके बाद क्या होता है? These are located outside abdominal cavity and scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body. ये तो कहाँ पे लोकेट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, स्क्रोटम में, क्योंकि
स्पर्म फॉर्मेशन जो है इसको कम दर्जा हरारत चाहिए नॉर्मल बॉडी के दर्जा हरारत से। वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और हमने पहले कहा कि टेस्टिस एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन in the previous study. In addition to the regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in the boys in the time. ये testosterone जो है ये वो changes लाता है boys में जो puberty के टाइम पे उनमें दिखते हैं। The sperms formed or delivered through the vasa difference, जो sperms यहाँ पे बनते हैं वो vasa differenza के ज़रिए डिलीवर किए जाते हैं, which unites with the tube coming from the urinary bladder, जो एक ट्यूब के साथ मिलता है जो यूरिनरी ब्लैडर से आता है। द यूरेथ्रा thus forms a common passage for both sperms and यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए, स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के भी लिए, यानी पेशाब के लिए भी और उस स्पर्म के लिए भी। Along the path of the vasa differenza, glands like prostate and seminal vesicle and their secretions, so that the sperms are now in fluid which make their transport easier, and this fluid also provides nutrition. ये along the path जो रास्ता है वासा डिफरेंस की तरह ग्लैंड्स जो होते हैं प्रोस्टेट जैसे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ये अपनी सिक्रेशंस ऐड करते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो फ्लूइड बन जाए और आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो सके और ये न्यूट्रिशन भी इसको मिले। द स्पर्म्स और टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी जेनेटिक मटेरियल, स्पर्म्स जो हैं टिनी बॉडीज होते हैं जिनमें बहुत सारी जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, एक लॉन्ग टेल होता है जो फीमेल जर्म सेल की तरफ उनको मूव करने में मदद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक अब आप देखिए यहाँ पे जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज़ वेजिना, सर्विकस, दिस इज़ यूट्रस और दिस इज़ ओरी एंड दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब। तो अब हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, द फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, जो फीमेल जर्म सेल्स या एग्स हैं वो ओवरीज में बनते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, और यहाँ भी कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो आप 8.11 शक्ल को देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए वेरियस ऑर्गन्स जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिस्टम में वेजिना, सर्विकस, यूट्रस, ओवरी और ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब आता है। तो व्हेन द गर्ल इज बॉर्न, जब लड़की जन्म लेती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ एमेच्योर एग्स, इन ओवरीज में जो हज़ारों एमेच्योर एग्स पाए जाते हैं। ऑन रीचिंग द प्यूबर्टी, जो ही ये बलोगियत को पहुंच जाती है लड़की, तो इसमें से कुछ मैच्योर हो जाते हैं। 1 egg produced every month by one of the ovaries, एक ओवरी हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू थिन ओविडक्ट, इस एग को ओवरी की तरफ लिया जाता है एक वॉम्ब के ज़रिए या थिन ओविड, जिससे ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं उसके ज़रिए इसको वॉम्ब तक पहुंचाया जाता है। और फैलोपियन, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, ये दो ओविडक्ट्स जो हैं एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ओविडक्ट ये वाले, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो ये आपस में मिलते हैं, उस को हम यूट्रस कहते हैं जहाँ पे यूनाइट होते हैं। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू द सर्विकस, और ये यूट्रस फिर ओपन होती है वेजिना के ज़रिए, थ्रू सर्विकस के ज़रिए वेजिना पर ये ओपन होती है।
तो आप देखिए, द स्पर्म्स इंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म वेजिनल पैसेज के ज़रिए बॉडी में दाखिल होते हैं. दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग. वो ट्रैवल करते हैं ऊपर की जानिब और ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पे उनका जो है उनका इनकाउंटर एग के साथ होता है, जहां वो एग के साथ मिल जाते हैं. और द फर्टिलाइज्ड एग ज़ाइगोट, उसके बाद जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वहाँ पे ज़ाइगोट बनता है. और ज़ाइगोट डिवाइडिंग उसकी जो है डिवाइड होना शुरू होता है टू फॉर्म बॉल ऑफ सेल्स. वहाँ पे एक बॉल ऑफ सेल्स बनती है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस where they continue to grow and develop organs to become fetus. We have seen the earlier secretions that mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. ये यूट्रस जो है हर महीने अपने आप को तैयार करती है एम्ब्रियो के लिए. The lining thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from mother's blood with the help of the special tissue called placenta. ये एम्ब्रियो जो होता है ये मदर के ब्लड से जो है न्यूट्रिशन हासिल करता है एक खास टिश्यू के ज़रिए जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं. दिस इज डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल. ये एक डिस्क होती है जो यूट्रीन वॉल में एम्बेडेड होती है. इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू. एम्ब्रियो साइड में इस पे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ऑन द मदर्स साइड ऑफ ब्लड स्पेसेस, और मदर्स के साइड में ब्लड स्पेसेस होते हैं विच सराउंड द विलाई. दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज. एक बड़ा सरफेस एरिया वहाँ पे मैसर होता है ग्लूकोज के लिए और ऑक्सीजन के लिए टू क्रॉस फ्राम मदर टू एम्ब्रियो, ताकि ये मदर से एम्ब्रियो तक गुजर जाएगा, पहुँच जाएगा. द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा. इसी तरह ये डेवलपिंग एम्ब्रियो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट करता है जो हम रिमूव कर सकते हैं. ट्रांसफ़र करने के बाद इनको मदर्स ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है प्लेसेंटा के ज़रिए ही. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली. जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है माँ के बदन में, तकरीबन इसको 9 महीने लगते हैं. द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ rhythmic contractions of muscles in the uterus. So dear students, I think it is enough for today. Hope that you will go through the lesson and try to understand the things well. Stay home, stay safe and